بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا من بنی مخزوم علی الصدقہ فقال لأبی رافع اسحبنی کیما تصیب منہ فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں حضرت ابو رافع ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مخزوم میں سے ایک آدمی کو صدقہ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے حضرت ابو رافع سے کہا اسحبنی کہ آپ میرے ساتھ چلو کیما تصیب منہ، تاکہ اس میں سے کچھ آپ پاویں، یعنی صدقہ میں سے جو ملے گا کچھ آپ کو بھی دے دیا جائے، میں اس میں سے کچھ آپ کو بھی آپ کا حصہ دے دوں، میرے ساتھ آپ چلے کیما تصیب منہ، تاکہ کچھ حصے کو اس میں سے صدقہ میں سے آپ پہنچے، یعنی اس میں سے کچھ حصہ آپ حاصل کر لیں۔ فقال، تو ابو رافع نے کہا لا، میں ایسا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میں آؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھوں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کس قدر عمل پیرا تھے، حضور کی رہنمائی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، بھلے اس میں ان کا اپنا فائدہ ہو۔ یہاں ان کو کچھ مال مل رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس کو لینا گوارا نہیں فرمایا۔ کہتے راوی فانطلق، چنانچہ وہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فسالہ، آپ سے پوچھا، یعنی ایسا ایسا معاملہ ہے حضور کہ اس آدمی کے ساتھ کیا میں زکوٰۃ لینے جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلا شبہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور بلا شبہ قوم کے موالی آزاد کردہ غلام من انفسہم انہی میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بنو ہاشم میں سے ہو، اور بنو ہاشم میں سے کسی کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ مولا قوم کا، یعنی آزاد کردہ غلام، زکوٰۃ لینے کے معاملے میں اسی آزاد قوم کے حکم میں، یعنی اگر اس قوم کے لیے زکوٰۃ دینا حلال ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے بھی حلال ہوگا، اور اگر اس قوم کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ بیان فرما دیا۔ دوسری روایت غنی اور مالدار شخص کے سلسلے میں ہے کہ اس کے لیے صدقہ لینا درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے کہ حضور نے فرمایا صدقہ حلال نہیں ہے غنی مالدار کے لیے، ولا ذی مرۃ سوی، اور نہ ہی ٹھیک ٹھاک تندرست توانا شخص جو محنت مزدوری کے قابل ہو، اس کے لیے بھی صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو کام کاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صحت مند تندرست ہوتے ہیں، اور پھر بھی صدقہ لیتے رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ مالدار نہیں ہے
मजदूर है, काम काज कर सकता है, तो उसके लिए औला ये है कि सदका ना ले। लेकिन अगर ले लेता है तो उसके लिए मोहताज और मुस्तहिक की सूरत में कोई हरज नहीं है। आगे रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन आमर की है। फरमाते हैं कि अखबरनी रजुला ने, कि मुझे दो आदमियों ने खबर दी कि वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और ये मौका हुआ फी हज्जतुल वदा। ये वो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में थे, हज्जतुल वदा के सफर पर थे। वह यक़सिमु सदका, और वो हुजूर सदका ज़कात का माल तक़सीम फरमा रहे थे। फसअलहु मिन्हा, तो उन दोनों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदका में से कुछ मुतालबा किया। फसअलहु मिन्हा, सदका के माल में से हुजूर से तलब किया कि उसमें से कुछ हमको भी अता फरमा दे। कहते हैं फरफ़ा फ़ी नज़र, तो हुजूर ने हम पर नज़र उठाई, यानी ऊपर से नीचे तक हमको देखा। वक़फ़ज़, व फिर नज़र झुका ली। फ़रआना जल्दैने, तो हुजूर ने हम दोनों को तवाना तंदुरुस्त देखा। जल्दैन तवाना तंदुरुस्त, काम काज के लायक, मजदूरी वगैरह कर सकते। फ़क़ाला, तो हुजूर ने कहा इंशे तुमा, अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूं। आते तुकुमा, ये बयानी जवाज को बताए कि मुस्तहिक है, भले तंदुरुस्त है, अगर चाहे तो दे दें। लेकिन हुजूर ने आगे मसला बताया, वला हज़्ज़ फ़ीहा लिगनी, लेकिन याद रखो कि सदका और ज़कात के माल में गनी का कोई हिस्सा नहीं है। वला लिक़वी मुक्तसिब, और न ऐसे शख्स का हिस्सा जो कुव्वत ताकत वाला हो और कमाने के ऊपर कुदरत रखता हो। मुक्तसिब, काम काज करने के लायक हो, मेहनत मजदूरी कर सकता हो, उसके लिए ज़कात सदक़े में कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह आगे रिवायत अता बिन यसार की है। ये मुरसलन रिवायत करते, ये ताबी हैं, दरमियान में सहाबी के वास्ते को छोड़ के हदीस रिवायत करते इरसाल के तौर पर। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ला तहिल्लु सदका लिगनी, कि गनी मालदार के लिए सदका नहीं है। इल्ला लिखमसा, मगर 5 सूरतों में। गनी मालदार को तो सदका नहीं मिलेगा, लेकिन 5 अगनिया ऐसे हैं जो सदका ले सकते हैं। एक तो गाजी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, गज़वा करने वाला। यानी अल्लाह के रास्ते में निकला हो, गज़वा करने वाला, लेकिन उसके पास गज़वे का सामान मौजूद ना हो, तो ऐसे के लिए सदका लेना जायज़ है। दूसरे लिआमिल अलैहा, ज़कात पर अमल करने वाला, यानी ज़कात की वसूली करने वाला, जो सदका ज़कात की वसूली पर मुकर्रर हो, वह अपनी तनख्वाह, सफ़र खर्च ज़कात के माल से ले सकता है। तीसरा औले गारिम, या तावान भरने वाला, तावान के बोझ तले दबा हुआ हो, भले मालदार हो, तावान अदा करने की इस्तिताअत उसके पास ना हो, तो सदका वगैरह लेकर के उससे चुका सकता है। औले गारिम, या तावान भरने वाले मालदार के लिए। औले रजुलिन इश्तराहा बिमालिही, चौथा ऐसा आदमी, ऐसे शख्स के लिए सदका हलाल जिसने सदका को खरीदा हो अपने माल से। सदका का माल उसने ऐसे नहीं लिया, किसी मुफलिस शख्स को सदका ज़कात का माल दिया गया, उसने इस मालदार से बेचा और इसलिए उसको खरीद लिया, तो फिर उसके लिए जायज़ है। औले रजुलिन, या ऐसे आदमी के लिए काना लहू जारू मिस्कीन, जिसका कोई पड़ोसी मिस्कीन था,
फतुसद्दिक़ अलल मिस्कीन, पस उस मिस्कीन को सदका दिया गया। फ़अहदल मिस्कीन लिल गनी, और उस मिस्कीन ने किसी मालदार आदमी को हदिये में वो सदका का माल दे दिया। तो माक़ूल बताया जा चुका है कि मिल्क की तब्दीली से हुक्म भी बदल जाता है। वो मिस्कीन था, मुस्तहिक था सदक़े का, उसको दिया गया सदक़े का माल, अब वो मालिक हो गया, अब उसमें से किसी को दे दे तो वो दे सकता है। आगे की रिवायत है, हजरत ज़ियाद बिन हारिस सौदाई कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आपसे बैत की। इसके बाद रावी फज़कर हदीसन तवीला, एक लंबी हदीस बयान करते हैं। उसमें एक बात ये कहते हैं, फ़ाताहु रजुल, कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, आतीनी मिन सदका, हुजूर मुझे सदका के माल में से कुछ दीजिए। तो हुजूर ने उसे फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह राजी नहीं है किसी नबी के फैसले और नहीं नबी के अलावा किसी आलिम वली मुज्तहिद के फैसले से सदका के बारे में, यानी सदका की तकसीम नबी या गैर नबी अपनी मर्जी से करे, इससे अल्लाह राजी नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह उस सदके के बारे में हुक्म दिया, खुद अपना फैसला दे दिया। हकम फिया हुआ, उसी ने खुद अपना फैसला दिया, नबी के हवाले नहीं किया। नबी तकसीम करेगा, लेकिन कहाँ तकसीम करेगा ये फैसला अल्लाह ने दिया। फजज़ा समानियत अज्ज़ा, बस अल्लाह ने उस सदक़े को 8 हिस्सों में बांटा, यानी उसके 8 मुस्तहिकीन करार दिए हैं, जैसा कि कुरान में इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन। उस शख्स से फरमाया, फ़इन कुंत मिन तिलकल अज्ज़ा, अगर तू उन ज़कात के 8 मसरब में से है, मुस्तहिकीन में से है, आतई तो का, तो मैं तुझको दे दूं। आगे हजरत ज़ैद बिन असलम की एक रवायत थी जिसमें हजरत उमर के एहतियात को बताया जा रहा। कहते हजरत उमर बिन खत्ताब ने दूध पिया, फ़ाजबहु, तो ये दूध उनको उम्दा लगा, अच्छा लगा। फसअलल्लज़ी, तो उस शख्स से पूछा, सकाऊ, जिसने इनको दूध पिलाया था, मिन आइना हाज़ल लबन, कहाँ से ये दूध लाए। फ़अख़बरहु, तो उन्होंने खबर दी, बताया, इन वरद अला माँ, कि वो किसी पानी पर वारी दुए आए थे, यानी पानी की जगह थी, क़द सम्मा, जिसका नाम भी उन्होंने बयान किया था कि फला जगह जहाँ पानी है, जानवर वगैरह पीने आते हैं, वहाँ पर आया। फ़इज़ा नाम मिन नाम सदका, बस अचानक वहाँ सदका के जानवरों में से कुछ जानवर थे, वहुम यस्कून, और लोग उन जानवरों को पानी पिला रहे थे वहाँ। फहलबू, बस उन जानवर वालों ने उसके दूध में से कुछ दूध निकाला। वही दूध जो सदका के जानवर वालों ने निकाला था, मैंने वो दूध अपने सिका, बर्तन यानी मशकेज़े में डाल, अपने मशक में डाल लिया। फहुआ हाज़ा, बस ये वही दूध है जो आपको मैंने दिया और आपने नोश फरमाया। कहते इतना सुनना था। फदखला उमर यदहू, बस हजरत उमर ने अपना हाथ मुंह में डाला, फस्तक़ा, और कै कर दी। ये बहुत ज्यादा एहतियात की बात है कि सदका का माल जो मुस्तहिक के लिए है, इन्होंने पी लिया, कै करके उसको निकाल दिया। मालूम हुआ ज़कात सदकात के सिलसिले में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।